Hello students of class 6th. Today we are going to study English first. In this we have to start new chapter number 5, The Kite Maker, page number 37. The Kite Maker, page number 37. In this story, Mahmud was a famous kite maker. In his young age, he was very popular because kite flying was a good hobby of many people. But with the change of time, people became busy. They lost their interest in this idle hobby. We will find how many changes he saw when he was young and when he was old. महमूद एक फेमस काइट मेकर था. उसके यंग एज में पतंग उड़ाना यानी काइट फ्लाइंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी थी बहुत सारे लोगों की. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोग बिजी होते चले गए और उनका इंटरेस्ट अब इस हॉबी में बहुत ज़्यादा नहीं रहा. तो हम ये इसमें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन चेंजेस हुए जब वो यंग थे और फिर जब वो बूढ़े हो गए. ठीक है. महमूद. There was one tree in the street known as Gali Ramnath ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mast, and little Ali's kite had caught in its branches. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobbled stones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their backyard. "Grandfather," shouted the boy, "my kite has gone." The old man woke from his daydream with a start and, raising his head, displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with mehndi leaves. "Did the twine break?" he asked. "The kite twine is not what it used to be." "No, grandfather, the kite is stuck in the banyan tree." The old man chuckled. "You have yet to learn how to fly a kite properly, my child, and I am too old to teach you. That's the pity of it. But you shall have another." एक स्ट्रीट में जो गली एक स्ट्रीट थी यानी रोड था, वहाँ पर एक ट्री थी, बनियन ट्री, गली रामनाथ एंशियंट बनियन ट्री दैट हैड ग्रोन थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबंडन मास्क के क्रैक में ये ट्री हुई थी. और लिटिल अली, छोटे अली की काइट यानी पतंग उसके ब्रांच में जाकर फंस गई थी. वो लड़का बेयरफुट यानी नंगे पांव और क्लैड ओनली इन अ टॉर्न शर्ट, फटे हुए शर्ट में, रैन अलोंग द कॉबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट, छोटे छोटे पत्थरों पे होता हुआ उस पतली सी स्ट्रीट में जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सो रहे थे, सपने देख रहे थे सनशाइन में, बैकयार्ड में. वो चिल्लाता हुआ उनके पास गया. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, "माई काइट हैज़ गॉन." मेरी पतंग चली गई. तो वो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी उठता है अपने दिन के ख्वाब से और अपना सर ऊपर करता है. "Displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with mehndi leaves." "Did the twine break?" तो उसने पूछा कि क्या मांझा टॉइन यानी मांझा की क्या मांझा टूट गया है. तो उसने कहा कि नहीं. तो अभी तो वही बोलता है जब उसको पूछता है कि क्या मांझा टूट गया है. अब का मांझा वैसा नहीं होता है जैसा पहले होता था. तो उसने कहा कि नहीं ग्रैंडफादर, वो काइट बनियन ट्री में अटक गई है. तो अब वो ओल्ड मैन थोड़ा हंसने लगा कि तुम्हें अभी भी सीखना है कि पतंग कैसे उड़ाते हैं मेरे बच्चे. मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन चलो तुम्हें दूसरा देता हूँ.
He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun, firming up. It was a pale pink kite with a small green tail. The old man handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. अभी अभी उसने वो बनाना ख़त्म किया था बैम्बू पेपर और थिन सिल्क से, और उसने उसको सन यानी धूप में सूरज में रखा हुआ था। वो पेल पिंक काइट थी जिसकी छोटी सी ग्रीन कलर की टेल थी। ओल्ड मैन ने उसको वो अली को दे दिया। द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, फिर वो लड़का अपने टोस पर खड़ा हुआ और अपने ग्रैंडफादर को किस करता हुआ चीक पर चला गया। I will not lose this one, he said. The kite will fly like a bird, and he turned on his heels and skipped out of the courtyard. The old man remained dreaming in the sun. His kite shop had gone, the premises long since sold to a junk dealer, but he still made kites for his own amusement and for his grandson Ali. Not many people bought kites these days. Adults disdained them, and children preferred to spend their money watching movies. Moreover, there were not many open spaces left for the flying of kites. The city had swallowed up the open fields that had stretched from the old fort's walls to the river bank. But the old man remembered a time when grown men flew kites and great battles were fought. The kites soaring and swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. Then the defeated but liberated kite would float away into the blue unknown. There was a good deal of betting, and money frequently changed hands. फिर उसने अली ने अपने ग्रैंडफादर से कहा कि मैं अब इसे गायब नहीं होने दूंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड। अब ये काइट चिड़िया के जैसे उड़ेगी। फिर वो मुड़ा और वापस चला गया कोर्टयार्ड से बाहर। और वो ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी फिर से ड्रीमिंग करने ही लगा सन में। इस काइट शॉप हैड गॉन। इसकी पतंग की दुकान चली गई थी उस बूढ़े आदमी की। द प्रेमिसेस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू अ जंक डीलर। एक डीलर को उसने बेच दिया था, बट लेकिन फिर भी वो अभी भी काइट बनाता था अपनी खुशी के लिए और अपने पोते यानी अली के लिए, ग्रैंडसन अली के लिए। नॉट मेनी पीपल बॉट काइट दीज डेज। अब बहुत सारे लोग काइट्स नहीं लेते हैं, अडल्ट तो बिल्कुल नहीं, और चिल्ड्रेन यानी बच्चे अब ज़्यादातर टाइम मीन्स अपने पैसे मूवीज़ पर खर्च करते हैं। मोर ओवर देयर वर नॉट मैनी ओपन स्पेसेस, और फिर अब बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी नहीं बची हैं पतंग उड़ाने के लिए। द सिटी हैड स्वॉलोड अप द ओपन फील्ड्स। शहर ने सब जगहों को स्वॉलो, एक तरह से कहा जाए तो मतलब स्वॉलो कर लिए सारे ओपन फील्ड्स में। अब कुछ ना कुछ चीज़ें बन गई हैं। दैट हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल्स टू द रिवर बैंक। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम। लेकिन उस बूढ़े आदमी को वो टाइम याद है जब बड़े बड़े लोग पतंग उड़ाते थे, बड़े बड़े बैटल्स होते थे। मीन्स पतंग की लड़ाई, यहाँ पे बैटल से मतलब है पतंग की लड़ाई। सब एक दूसरे की कैसे पतंग काटते थे, कैसे पतंग के लिए भागते थे पीछे, ये सारी चीज़ें उनको याद आने लगी। Kite flying was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in this noble pastime. There was time then to spend an idle hour with a gay dancing strip of paper. Now everyone hurried in a heat of hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot. In the prime of his life, Mahmud had been well known throughout the city. Some of his more elaborate kites were sold for as much as 3 or 4 rupees each. तब काइट फ्लाइंग राजाओं का भी एक स्पोर्ट था यानी गेम
था और कैसे वो ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी याद कर रहे थे कैसे नवाब खुद रिवर साइड की तरफ आते थे और इस पास टाइम में पार्टिसिपेट करते थे। देयर वॉज टाइम, वो टाइम था टू स्पेंड एन आइडल आवर विथ अ गेम, मतलब खुशी के साथ वो घंटा मीन्स जो खाली घंटे होते थे उसमें ये लोग ये काम करते थे। डांसिंग स्टेप ऑफ पेपर, नाउ एवरीवन हरीड इन अ हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। लेकिन अब किसी के पास में टाइम नहीं है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, अब किसी के पास खाली समय नहीं बचा है। जब महमूद यंग था, जब महमूद यंग थे इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी, वो उस सिटी में जाने जाते थे। सम ऑफ हिज मोर एलाबोरेट काइट्स वंस सोल्ड फॉर हिज, उनकी कुछ पतंगे जो हैं 3 से 4 रुपए में भी बेची जाती थी। मीन्स वो उस वक्त में 3 से 4 रुपए में एक पतंग बेचते थे। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite, unlike any that had been seen in the district. It consisted of a series of small, very light paper discs trailing on a thin bamboo frame. To the end of each disc, he fixed a sprig of grass, forming a balance on both sides. The surface of the foremost disc was slightly convex, and a fantastic face was painted on it, having 2 eyes made of small mirrors. The disc, decreasing in size from head to tail, assumed an undulatory form and gave the kite the appearance of a crawling serpent. It required great skill to raise this cumbersome device from the ground, and only Mahmud could manage it. ओके एक बार नवाब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने बहुत ही स्पेशल, महमूद ने बहुत ही स्पेशल काइट बनाए। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैसी पतंग नहीं थी। इट कंसिस्टेड ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, बहुत ही छोटे छोटे पेपर डिस्क थे। ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम पर लगे हुए थे। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्स्ड अ स्प्रिग ऑफ ग्रास, उसने हर डिस्क के एंड पर ग्रास स्प्रिग लगाया हुआ था जिससे दोनों तरफ में बैलेंस हो सके। सरफेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कॉन्वेक्स एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट। उसका सरफेस फॉरमोस्ट डिस्क का स्लाइटली कॉन्वेक्स था और उस पर उसने एक फेस को पेंट किया हुआ था जिसमें 2 आईज थी मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, छोटे छोटे मिरर्स से उसकी आईज बनी हुई थी। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, वो डिस्क ऊपर से नीचे तक साइज में डिक्रीज हो रही थी, यानी अब मोटे से नीचे पतला हुई जा रही थी। assumed an adulatory form and gave the kite the appearance of crawling serpent, और उसने उस काइट को, उसकी अपीयरेंस को एक क्रॉलिंग सर्पेंट यानी रेंगते हुए सांप के जैसा उसने उसको दिखाया है। और ये इसको बनाने के लिए बहुत स्किल की ज़रूरत थी, यानी दिमाग की ज़रूरत थी, और ये सिर्फ महमूद ही कर सकता था। ओके, तो वी विल रीड अप टू हियर बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो यू ऑल रीड इट अप टू हियर and rest which is left here we will do it afterwards, okay, in our next class.